Good evening, students. Today we will continue the same chapter, that is chemical coordination and integration. Okay, and in this chapter today we will first of all deal about the next endocrine gland, that is thyroid gland. And thyroid gland is the largest endocrine gland of the human body. Okay, so हमारा आज का पहला टॉपिक है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, ठीक है. और ये जो तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है ये क्या है? इट इज नोन टू बी द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. इट इज नोन to be the largest endocrine gland. Okay, next is origin. Endocrine gland originate from which germ layer? It is basically endodermal in origin. It is endodermal in origin. Endodermal in origin. Now, the thyroid gland is bilobed and highly vascular endocrine gland. It is now next is it is बाइलोब्ड, मतलब दो लोब होता है, एंड हाईली वस्कुलर ऑर्गन. ओके, नेक्स्ट इज लोकेशन एंड स्ट्रक्चर. बेसिकली द थायराइड ग्लैंड इज वन पेयर एंड इट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, दैट इज composed of two lobes, one on each side of the trachea. Trachea means windpipe. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर. क्या होगा इसमें? Location and structure. It means thyroid gland surrounds the front of the larynx. Larynx means vocal cord. It surrounds the front of the larynx and is composed of two lobes and is composed of two lobes. इसमें दो लोब होता है. Next, each lobe is located on either side of the windpipe, that is trachea. Each lobe is located on either side of the trachea. What is this trachea called? Windpipe. Trachea का ही दूसरा नाम है windpipe. Now, next, these two lobes are connected with each other by a connective tissue called isthmus. ठीक है. तो अब लिखेंगे which are connected through thin flap of the connected
tissue called through this flap of which are connected, these two lobe on each side of the trachea are connected to each other through a thin flap of connective tissue called isthmus. Okay, now this thyroid gland is composed of follicles. Okay, that is thyroid follicles held together by a loose connective tissue called stromal tissue. Okay, it is means thyroid gland is composed of follicles, and follicles are rounded in shape, which are composed of follicles which are held together by a loose connective tissue called by a loose connective tissue called stromal tissue, Okay, अब देखो, this is a thyroid gland. Today we will deal about it. Okay, we are continuing the same chapter, that is chemical coordination and integration. In thyroid gland, we all must know that it is the largest endocrine gland of the human body. Second, origin. It originates from endodermal of the three germ layer. Okay, now these thyroid gland are bilobed and they are highly vascular. Next, we go through location and structure. What is the location? It is it surrounds the front of the larynx. Larynx के front में रहता है, and basically it is found in the windpipe on both sides. And these two lobes on both sides of the trachea is connected to each other by a group of connective tissue that is called isthmus. Now, the thyroid gland consists of follicles which are generally rounded in shape, and this follicle cell are held together. सब follicle cell एक जगह रहता है by a connective tissue called stromal tissue. यहां तक क्लियर हो गया सभी को? वही तो पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? देखो, तो अभी तो वही बताया, पूरा बता दिए जी. सुनो, थायराइड ग्लैंड में पहला पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड. प्रीवियस क्लास हमने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, एंड टुडे थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड. नेक्स्ट इज ऑरिजिन. ऑरिजिन इज इंडोडर्मल इन ऑरिजिन. 3 जर्म लेयर होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, जिसमें से इंडोडर्म से कौन अराइज करता है? थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट, ये एक बाइलोब है क्योंकि एक जोड़ा होता है थायराइड ग्लैंड, एंड इट इज हाईली वस्कुलर. नाउ नेक्स्ट, लोकेशन कहां पे पाया जाता है? ये लैरिंग्स के आगे इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स पाया जाता है, और हमारे विंड पाइप के दोनों साइड में पाया जाएगा, मतलब लैटरली पाया. जैसे अगर ये विंड पाइप है तो एक यहां पे और एक यहां पे पाया जाएगा. ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहेगा. जैसे मान लो अगर ये ट्रैकिया है तो यहां पे एक पाया जाएगा और यहां पे एक पाया जाएगा थायराइड ग्लैंड, और ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ रहेगा बाय अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड दैट इज कॉल्ड isthmus. हर एक थायराइड ग्लैंड के लोब में ग्रुप ऑफ थायराइड फॉलिकल्स पाया जाएगा, और ये जो थायराइड फॉलिकल्स हर एक थायराइड ग्लैंड में पाया जा रहा है, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड द नेम ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू इज स्ट्रोमल टिश्यू. अब समझ आया? क्लियर? ठीक है. अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स. बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है, इट रिलीजेस 2 हार्मोन. वन इज थायरोक्सिन एंड अदर इज थायरोकैल्सिटोनिन. तो सबसे पहले हम लोग थायराइड के थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में जानेंगे. ठीक है.
नेक्स्ट, हॉर्मोन्स। देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली थायराइड ग्लैंड रिलीजेस 2 hormones, that is A, thyroxine, and B, thyrocalcitonin। इसको लिखा जाता है बुक में TCT। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट थायरोक्सिन। ओके, the follicular cell in the thyroid gland synthesizes 2 type of thyroxine. The follicular cells in the thyroid synthesizes, ठीक है, या synthesized 2 type of thyroxine hormone। थायरोक्सिन hormone क्या क्या है भाई ये? What are they? They are of 2 type, that is T4 and T3। What is the name of T4? Tetrahydrothyroxine। tetrahydrothyroxine, and the second is triiodothyroxine। Okay, now the question is how this T3 and T4 forms? Both these hormone are iodinated form of amino acid named tyrosine। Both these hormone are iodinated form of amino acid। amino acid का iodinated form है जिसका नाम है टायरोसिन। ठीक है, T3 and T4। Now they are stored in the colloid। These are the tissue, or sorry, these are the cells which fill the thyroid follicle of each thyroid gland। थायराइड ग्लैंड थायराइड फॉलिकल से बना हुआ है, और थायराइड फॉलिकल किन सेल से बना हुआ है? कोलॉइड सेल से। तो लिखेंगे दे are stored in the colloid। T3 और T4 कहां पे स्टोर होता है? स्टोर इन द colloid। ओके, that fills the follicle, that fills the follicle, that fills the follicle and are released to the blood, to our blood when needed। जब हमारा जरूरत पड़ता है, this colloid cells in the follicle release T3 and T4 into our blood। Why? Because we all know that all the endocrine glands are ductless gland, so they are unable to release their secretion directly in the site of action। तो वो site of action तक, how they reach site of action? Via blood and lymph, that is the medium। Okay, now they are released to the blood when needed। So हम लोग को इससे क्या पता चला? आयोडीन is required for the normal synthesis
iodine is required for the normal synthesis of hormone. Iodine is required for the normal synthesis of hormone in thyroid gland. In thyroid gland. ठीक है, यानी आयोडीन जो है that is very important in our diet so that our thyroid gland perform properly to release correct amount of thyroxine hormone, that is triiodothyroxine and tetraiodothyroxine. यहां तक कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? बोलो. कोई प्रॉब्लम? तो देखो, ये तो क्लियर हो गया कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है और ये कितने टाइप का है. दो हो गया, T3 T4. ये किसमें स्टोर रहता है? कोलॉइड सेल्स में. ये किसमें रिलीज होता है? ब्लड में, और ब्लड से साइट ऑफ एक्शन तक जाता है. और दूसरा, इसके प्रॉपर सिक्रेशन के लिए क्या डाइट में जरूरी है? आयोडीन इज रिक्वायर्ड, दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट जो हम लोग लेते हैं. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिसऑर्डर्स which is caused either due to hypersecretion or hyposecretion of thyroid hormone. ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है उसका अगर हाइपरसिक्रेशन हो, हाइपर मींस मोर देन नॉर्मल, और अगर हाइपोसिक्रेशन हो, हाइपोसिक्रेशन मींस लेस देन नॉर्मल, तो उसमें व्हाट आर द डिफॉर्मिटीज, डिसऑर्डर और डिजीज which can cause in the human body. Okay, now we have to know about that. Disorders. Okay, and the first disorder is hypothyroidism. Hypo means less than normal, जितना जरूरत है थायरॉक्सिन हार्मोन का बॉडी में प्रोड्यूस होना उससे कम होगा. ठीक है, तो हाइपोथायरॉइडिज्म लिखेंगे this disorder is caused due to the deficiency, कमी किसका? deficiency of iodine in our body or diet. In our diet. What it happens? It leads to the enlargement of the thyroid gland. It leads to the enlargement of thyroid gland. हमारा thyroid gland enlarge हो जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं? It leads to the enlargement of the thyroid gland, that is goiter. क्या बोलते हैं इसको? goiter. Enlargement of the thyroid gland, that is goiter. Now, hypothyroidism अगर women में हो at the time of pregnancy, then what are the problems it generally cause? First problem जो होता है, it leads to the poor development of and maturation of the fetus present in the mother uterus or pregnant lady uterus. Second, it leads to mental retardation, very low intelligence, abnormal skin. Okay, these are the deformities which is caused in the developing child when the female is what? Pregnant, and she is suffering from hypothyroidism. तो अब लिखेंगे hypothyroidism. Hypothyroidism in women at the time of pregnancy. Hypothyroidism in women at the time of pregnancy affects the development
and maturation of affects the development and maturation of the growing baby. जो बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है उसमें सबसे पहले उसके डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, उसके मैच्योरिटी को डेवलप करेगा, इफेक्ट करेगा. नेक्स्ट क्या क्या प्रॉब्लम होगा देखो. ठीक है, लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ, और इसके कारण बच्चा का ग्रोथ क्या होगा? स्टंटेड, मतलब वो नॉर्मल ग्रोथ अचीव नहीं कर पाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म, CRETINISM. दिस इज कॉल्ड क्रिटिनिज्म. Along with that और क्या क्या डिफॉर्मिटीज होगा? मेंटल रिटार्डेशन, लोअर इंटेलिजेंस, उसका जो इंटेलिजेंस है, IQ है, वो पुअर हो जाएगा, है ना, नियर अबाउट 60 और बिलो 60 चला जाएगा. उसके बाद क्या होगा? एबनॉर्मल स्किन होगा, स्किन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा. डेफ, ठीक है, डेफ, म्यूटिज्म, है ना, बहरा हो सकता है या गूंगा हो सकता है, एक्सेट्रा. दूसरा क्या होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वुमेन में कॉज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. सेकेंड, hypothyroidism in adult women may cause abnormal menstrual cycle. ठीक है, ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, यहां तक समझ आया हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या इफेक्ट्स है? एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल नॉट ऑकर प्रॉपरली, इट मे डिले और इट मे ऑकर फ्रीक्वेंटली. ठीक है, दैट मींस वो 28 to 29 डे साइकिल को फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, हाँ, ब्लड लॉस ज्यादा होगा ना, तो जो फीमेल है सी इज बिकमिंग एनीमिक, समझ रही है, और जब वो हाईली एनीमिक होगा वो और भी दूसरे प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा. ठीक है, देखो ब्लड जाएगा तो बॉडी वेट तो ऑटोमेटिक दिक्कत होगा, लीन एंड थीन हो जाएगी, वो तो ऑटोमेटिक होना ही है. फिर उसको सफोकेशन हो रहा बॉडी में शुरू होगा, ब्लड लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा तो आरबीसी भी तो घटेगा. समझी? अरे तो हाइपो में लीन एंड थीन होगा ना, तो लीन एंड थीन क्यों होगा वो समझो. मेंस्ट्रुअल साइकिल जब डिस्टर्ब होगा, इट कॉज आइदर फ्रीक्वेंट और डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट में कॉज अदर हार्मोनल डिसबैलेंस इन द बॉडी. देखो ये जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसबैलेंस होगा, दैट मींस हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है बॉडी में, एंड दैट कॉज अदर साइड इफेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, अब हम लोग ये तो हाइपो तो पढ़ लिए, क्या बोल रही है? ये तो इजी है जी. हाइपोथायरॉयडिज्म में कहा गया कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है और उस समय अगर वो सफर कर जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म से, दैट इज पुअर सिक्रेशन ऑफ व्हाट? पुअर सिक्रेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, दिस इज पुअर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन. तो क्या होगा? उसके यूटेरस में जो फीटस डेवलप कर रहा है उसका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन दोनों इफेक्टेड होगा, जिसके कारण वो बेबी का मेंटल रिटार्डेशन होगा, मानसिक जो विकास है वो नहीं होगा. उसके कारण क्या होगा? IQ लेवल कम होगा, नॉर्मल से कम हो जाएगा, और उसका स्किन एबनॉर्मल होगा, प्रॉपर्ली स्किन का डेवलपमेंट नहीं होगा. इट में लीड्स टू अदर स्किन डिजीज ऑल्सो, प्लस वो डेफ होगा या डेफ एंड डम. ठीक है, बहरा और गूंगा दोनों हो सकता है. समझ गए? अरे भाई जिंदा क्यों नहीं होगा? हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि बच्चा अबॉर्ट कर जाएगा. एबनॉर्मल बच्चा पैदा नहीं होता है. तुम थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रही है? अरे भाई स्किन डिजीज नहीं हुआ, यहाँ स्किन एबनॉर्मल स्किन बोला गया, डिजीज नहीं बोला गया.
इसका मतलब हो गया कि स्किन का जो लेयर है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। जैसे देखते हो बहुत कोई का लेयर में जो एकदम स्किन व्हाइट होता है, क्यों होता है? हाँ, वो जला फला नहीं है यहाँ, ठीक है। उसको कोई वो मदर की बॉडी में जलेगा नहीं ना, वो सब फालतू बात है। इसमें क्या होगा कि स्किन का जो अपर लेयर में मेलानोसाइट सेल्स होता है, मेलानोसाइट्स किसको बोलते हैं? विच हैव मेलानिन, वो मेलानोसाइट सेल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं करेगा, समझ गए? ये हम बोल रहे हैं एबनॉर्मल स्किन, हम बर्निंग स्किन तो नहीं बोले कहीं भी। क्या देखो, एडल्ट वुमेन का मतलब 18+। बेसिकली ये प्रॉब्लम ज्यादा वुमेन में होता है व्हेन दे आर 35+। ओके, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या, लेस देन 18 होगा तो भी डिफॉर्मिटी होगा, बट वो डिफॉर्मिटी इतना प्रोनाउंस नहीं होगा जितना 35+ में होता है, समझ गए? ठीक है। अब देखो हाइपो तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपर। हाइपरथायराइडिज्म मींस मोर देन नॉर्मल, और इसमें होता है एक्सोथैल्मिक गॉइटर, जिसको हम थायराइड कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म सेकेंड, हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म मींस, इसमें लिखेंगे इट इज द कंडीशन ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज मोर देन इट्स नॉर्मल। इट इज द कंडीशन in which the rate of synthesis and release of thyroxine hormone, that is both T3 and T4, is more than normal, यानी ये एबनॉर्मल अमाउंट में हो सकता है। ब्रैकेट में लिख दो एबनॉर्मल अमाउंट, ठीक है। मोर देन नॉर्मल ये रिलीज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इट में ऑकर दो कारण से हो सकता है। एक, इट में ऑकर ड्यू टू द थायराइड कैंसर, और इट इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, दाना दाना जैसा हो जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। It occurs either due to thyroid cancer or due to nodule formation in thyroid gland, or due to nodule formation in thyroid gland, ठीक है। ये हो गया हाइपरथायराइडिज्म, समझ आया? बोलो। अभी जो आप हाइपोथायराइडिज्म बताए, हाँ वो हो सकता है, लेकिन तुम जो बोल रही है ना, उसमें बच्चा जो है पफी फिंगर होगा, ये सब होगा, ये हाइपर में ज्यादा होता है, समझ गई? देखो बच्चा लीन एंड थीन होगा तो वो हाइपर है, हाइपो है, ठीक है। लेकिन हाइपर होगा तो बच्चा में जो फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो कम होगा, ठीक है। मतलब फैट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म एक्सेस हो जाएगा, जिस कारण से बच्चा जो है हाइपरथायराइडिज्म और हाइपो में अलग अलग होगा, ठीक है। बोलो। वो अलग चीज है जी, वो जेनेटिक है, वो हो गया पॉलीडेक्टाइली। तुम किसको किससे रिलेट कर रही है?
वो हम लोग जेनेटिक डिजीज में पढ़ेंगे। वो हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। ह्यूमन में 2 तरह का क्रोमोसोम होता है ना, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में आएगा हंटिंगटन्स डिजीज, पॉलीडैक्टाइली, ये सब हम लोग पढ़ेंगे उसी समय, ठीक है। जेनेटिक्स से इंडोक्राइन को मत जोड़ो अभी। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा कि इट एडवर्सली इफेक्ट, ये क्या करेगा, दिस हाइपरथायरॉयडिज्म एडवर्सली इफेक्ट व्हाट, द फिजियोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल। इट adversely affect the physiology of an individual. Individual इसलिए लिखे, it may be male or female. Now the first problem of hyperthyroidism is exophthalmic goiter. एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर है ग्रेव्स डिजीज। नेक्स्ट, इन दिस क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड होगा। इन दिस enlargement of the thyroid gland. In this enlargement of the thyroid gland takes place. इसमें enlargement होगा थायराइड ग्लैंड का। अब इसके बाद क्या होगा, 10 थायराइड सिक्रीशन इंक्रीज होगा, और थायराइड सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इट लीड्स टू प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल। आंख का बॉल है वो जैसे लगे जैसे बाहर निकला हुआ है, प्रोट्रूशन ऑफ द आई बॉल प्लस इंक्रीज BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस। इट लीड्स टू द प्रोट्रूशन ऑफ द eyeball। दूसरा, इंक्रीज बेसिक मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस। क्या है पहला, प्रोट्रूशन, आई बॉल एकदम आंख के ऊपर वाले पार्ट में नजदीक आ जाएगा। दूसरा, BMR यानी रेट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, जिस कारण से वो इंसान जिसमें एक्सोथेल्मिक गॉइटर होगा, दे हैज अ वेरी फास्ट वेट लॉस, ठीक है। यानी इस केस में द जेंट्स और लेडी, द मेल और फीमेल बिकम वेरी लीन एंड थिन, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सोथेल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। यहां तक समझ आया क्या, क्यों नहीं लीन थिन होगा, अगर हाइपोसिक्रेशन है तो बॉडी में जमा हो रहा है फैट, तो इंसान मोटा हो रहा है, और यहां पे फैट बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फैट जमा ही नहीं होगा बल्कि एक्स्ट्रा फैट जो था बॉडी में, जो नॉर्मल फैट था वो भी ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो वो लीन एंड थिन नहीं होगा। हाइपो में तो जमा होगा ना, हाइपो का मतलब क्या है पहले बताओ। हाइपो मीन्स पुअर सिक्रेशन। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन का मेन काम क्या है, इट कंट्रोल द बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट का मतलब समझ है, इसका मतलब होता है कि इट कंट्रोल द रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन जब थायरॉक्सिन मोर देन नॉर्मल हो रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी तो एबनॉर्मली करने लगेगा, और जब उसको एबनॉर्मली करने लगेगा तो फैट और कार्बोहाइड्रेट मोर देन नॉर्मल ऑक्सीडाइज्ड होगा, और मोर देन नॉर्मल अगर ऑक्सीडाइज्ड होगा तो मोर देन नॉर्मल वो टूटने लगेगा, और कार्बोहाइड्रेट जितना टूटेगा इंसान के बॉडी में उतना कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, और फैट का कमी होगा, दैट मीन्स द पर्सन बिकम लीन एंड थिन। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या प्रॉब्लम है कि वो उस इंसान के बॉडी में
कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, जिससे फैट और कार्बोहाइड्रेट का उसके बॉडी में एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा, सो ही बिकमिंग फैट। समझ आया? हाइपर में फैट हो जाएगा, हाइपर में फैट हो जाएगा, फिर वही गलती कर रही है। उल्टा उल्टा। हाँ ठीक है। हाइपर में और किसी कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी, नहीं तो मिटा देंगे। ठीक, अब देखो और कुछ डिजीज पढ़ा देते हैं ना जो नीट में, जैसे हाशिमोतो डिजीज, ये पढ़ा देते 2-3 पढ़ा रहे। अभी देखो नया नया टाइप का डिजीज है, नीट में आता है, ठीक है। हाशिमोतो डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। क्या है पहले समझ लो, फिर अपने आप देखो पूरा समझ आ जाएगा। हाशिमोतो डिजीज, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन द थायराइड, इन विच द थायराइड ग्लैंड ऑफ ए इंडिविजुअल इज डिस्ट्रॉयड बाय द इम्यून सिस्टम। जब मेरे बॉडी का इम्यून सिस्टम मेरे ही शरीर के थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दे, उसको फंक्शनलेस कर दे, दैट डिजीज इज कॉल्ड हाशिमोतो डिजीज, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इन विच द थायराइड ग्लैंड, इसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड is destroyed by autoimmune, इम्यूनिटी खुद हमारे अपने ही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑल द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज टोटली इंपेयर्ड, मतलब थायराइड ग्लैंड जो भी काम करता है वो टोटली बंद हो जाएगा। ऑल द function of the thyroid gland is totally impaired, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मिक्सोडेमा, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सोडेमा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मिक्सोडेमा? इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट। इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द एडल्ट। जब एडल्ट में थायराइड ग्लैंड का डिफिशियंसी होता है, दैट कॉल्स मिक्सोडेमा। इट इज मोर कॉमन इन वोमेन एंड इट लीड्स टू पफी अपीयरेंस। ये वोमेन में ज्यादा कॉमन है, और जब उसका पूरा बॉडी फुला फुला हुआ नजर आएगा, जैसे बच्चा ऐसा गोलू मोलू टाइप का पफी अपीयरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड मिक्सोडेमा, ठीक है। इट इज मोर कॉमन इन वोमेन, ये ज्यादा वोमेन किसमें कॉमन है, मोर कॉमन इन वोमेन, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय puffy appearance, characterized by puffy appearance due to accumulation मतलब होता है जमा होना, accumulation of fat in the subcutaneous layer। कहां पे जमा होता है, इन द सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। बिकॉज ऑफ लो
बेसल मेटाबॉलिक रेट, बिकॉज ऑफ लो बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड रिटार्डेड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी बंद हो जाएगा, रिटार्डेड ऑक्सीडेशन। देखो जो अभी पूछ रही थी ना कि फीमेल मोटा हो जाए उसको क्या बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म में, उस बीमारी का नाम है मिक्सोडेमा, इसलिए हम ये पढ़ाए क्योंकि तुम लोग का क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा था। समझ आया? एक बार जोर से बोलो, थोड़ा आवाज कम आ रहा है, प्लीज एक बार और। देखो हाशिमोटो डिजीज क्या है, सबसे पहले ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है समझ लो। इम्यून, व्हाट इज इम्यूनिटी, बताओ ये व्हाट इज इम्यूनिटी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन बॉडी विच इंटर आवर बॉडी। जो भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करता है वो हमारे बॉडी का तो पार्ट नहीं है, सो दे आर फॉरेन बॉडी एंड दे आर कॉल्ड एंटीजन। When they enter our body, our immune system क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है टू प्रोटेक्ट अस। लेकिन जब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी को नुकसान पहुंचाए, when our own immune system destroy our own body, then the disease which are caused due to this are called autoimmune disorder। सबसे पहले ये बताओ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब समझे कि नहीं? ठीक है, अब सुनो। तो क्या होता है कि जब हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके कारण थायराइड ग्लैंड का टोटल फंक्शन जीरो हो गया। अब वो कुछ काम नहीं करेगा, खाली बॉडी में एक ऑर्गन है लेकिन उसका काम जीरो, उसको फंक्शनलेस बना दिया हमारा इम्यून सिस्टम। दैट टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हाशिमोटो डिजीज। अब समझ आया? और किसी को? और एक जन जो वो क्वेश्चन पूछ रही थी, कौन थी वो स्किन वाला जो पूछ रही थी? कौन? रिया। ठीक है बोलो, और किसी को? रिया कुछ पूछना है? तो किरण कहां चली गई? किरण ठीक। अब देखो, तो ये तो तुम लोग जाने किसके बारे में, थायरॉक्सिन। लेकिन तुम लोग को हम अभी बताए थे कि और एक हार्मोन का नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। हमें इसके बारे में भी जानना है, लेकिन इसके पहले हम इतना जो पढ़े थायरॉक्सिन के बारे में, तो कॉमनली एक जान जाते हैं कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, वेदर इट इज T3 और T4। ठीक है, थायरॉक्सिन फंक्शन, थायरॉक्सिन functions। First, the hormone regulate and maintain the PMR. The hormone regulate and maintain the BMR, that is basic metabolic rate। तो हार्मोन रेगुलेट भी करता है और साथ ही साथ मेंटेन भी करता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट को, दैट इज इट इंक्रीजेस द ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दैट इज बोथ ट्राईआइडोथायरॉक्सिन एंड टेट्राआइडोथायरॉक्सिन increases the BMR, basic metabolic rate of our body। तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, सेकेंड, they support the process of formation of red blood cells। these support the formation of RBC
ये हमारे बॉडी में आरबीसी के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द metabolism of carbohydrate, protein and फैट. साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल भी करता है. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी. ठीक है, इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म of water and electrolyte, influence the metabolism of water and electrolyte in our body. It influences the metabolism of water and electrolyte balance in our body. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड TCT, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन. थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? इट मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड. ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया क्या क्या फंक्शन है. फर्स्ट, ये रेगुलेट करता है और मेंटेन भी करता है बीएमआर को, बेसिक मेटाबॉलिक रेट. सेकेंड, ये सपोर्ट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. एंड फाइनली इट मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी. ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं, बेटर लिख दो मेंटेनेंस. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, थायराइड ग्लैंड और थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में. थायराइड ग्लैंड also secretes another hormone called thyrocalcitonin. Thyrocalcitonin. What is its function? Its main function is to regulate the level of calcium in blood. Its main function is to regulate the level of calcium in our blood. ओके, तो ये जो तुम्हारा है ये हो गया थायराइड कंप्लीट. अब हम लोग पढ़ेंगे पाराथायरॉयड ग्लैंड. क्या पढ़ेंगे? पाराथायरॉयड ग्लैंड. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट endocrine gland, that is parathyroid. Okay, and we all know that parathyroid, we must know that parathyroid is two in pair, one pair each on the lobe of the thyroid gland. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? Parathyroid gland. Okay, now parathyroid gland are the small gland in human neck that are producing parathyroid hormone. These are the small gland
in the human neck. These are the small gland in the human neck that क्या प्रोड्यूस करेगा जी? प्रोड्यूसेस पाराथायरॉयड हार्मोन. क्या प्रोड्यूस करेगा? पाराथायरॉयड हार्मोन. ओके, so this is the fourth endocrine gland what we study today. Next, this is endodermal in origin. It is endodermal in origin. It is endodermal in origin. This is origin. Next, location. These are the glands which are found in the posterior side of our thyroid gland. Location. These are found in the posterior side of the thyroid gland, that is 2 in each lobe. 2 in each lobe of the thyroid gland. हर एक थायराइड ग्लैंड में 2 लोब पाया जाएगा. क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड आर 2 इन पेयर. ब्रैकेट में लिख देंगे पाराथायरॉयड glands are in 2 pairs. ये किसमें पाया जाता है? 2 pairs में. Now structure. These are small, flat and oval. क्या होगा? These are small. These are small, flat and oval gland. This is structure. Next, hormone. What are hormone? Parathyroid gland secretes a single hormone that is called parathormone or parathyroid hormone. ठीक है? PTH. These या parathyroid gland secretes a single hormone called parathormone or parathyroid hormone. ठीक है? Now the secretion of PTH, that is parathyroid hormone, is regulated by the circulating level of calcium in the blood. The secretion of parath hormone is regulated by what? By the level of calcium in the blood. ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब थायरोकैल्सिटोनिन और पाराथायरॉयड हार्मोन में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है. पाराथायरॉयड हार्मोन जहां पे कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है, वहीं जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करके एक मिनिमम लेवल में, एक ऑप्टिमम लेवल में लाता है जो ब्लड में होना चाहिए. ठीक है? यानी पाराथायरॉयड हार्मोन जहां कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, थायरोकैल्सिटोनिन वहां पे कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है. ठीक है? यहां तक समझ आ गया पाराथायरॉयड हार्मोन के बारे में.
हाँ ठीक है। अब देखो एक ही तो हार्मोन बनाता है, इसका थोड़ा काम जान लेते हैं कि भाई पाराथायराइड हार्मोन करता क्या है और कैसे करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ पाराथायराइड हार्मोन, इट्स फंक्शन। फर्स्ट क्या होगा, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ, it increases the level of calcium in the blood. It increases the level of calcium in the blood. ये कौन करता है, पाराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्या होगा, इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ, it stimulate the process of bone reabsorption, bone reabsorption। अब bone reabsorption का मतलब that is demineralization, that is demineralization by acting on bones, by acting on bones। मतलब ये बोन्स से क्या करे, देखो ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में, तो कैल्शियम सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में कहां पाया जाता है, बोन्स में। तो बोन्स में ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा कैल्शियम का। थर्ड क्या होगा, इट ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन किसका स्ट्रक्चरल यूनिट है, किडनी का। ठीक है, तो लिखेंगे थर्ड, इट इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इट इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, या लिख दो Ca2+ बाय द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल मतलब ही होता है किडनी, रीनल ट्यूब्यूल्स। और साथ ही साथ क्या होगा, एंड ऑल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड में जो कैल्शियम का मात्रा है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, दैट पीटीएच क्या है, इसका मतलब हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, यानी ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। देयरफॉर पीटीएच, पाराथायरॉयड हार्मोन, इज अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, दैट इज इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ठीक है, पाराथायरॉयड जो है इज अंडर द फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। पाराथायरॉयड हार्मोन इज अंडर द फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। पाराथायरॉयड हार्मोन जो है इट इज अंडर द फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 10। ठीक है, बोला जा रहा है कि जैसे हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है, तुरंत ये स्टिमुलेट करता है पाराथायरॉयड हार्मोन को टू रिलीज पीटीएच। और पीटीएच क्या करता है, इट इंक्रीज इमीडिएटली द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि टीसीएच दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन और पीटीएच दैट इज पाराथायरॉयड हार्मोन बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब बोलो यहां पे कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट? हाँ, मैं समझ
ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ ओनली द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज pancreas. Okay, we will deal about it on the next class, as well as we will deal about the most important topic, feedback mechanism. That's all for today. Thank you.